Now let us have a look at order 4. For the time being, we will skip order 3 and order 5 because we have to go in accordance with the order of precedence of importance, because there are some orders in CPC which have high conceptual value, while there are some orders in CPC who do not have such a high level of conceptual value, relatively speaking, and some are only of a Bayer Act level. So order 3 and order 5 are of only Bayer Act level. They are not very nuanced order, so that can be read by yourself as well. But I will be covering them after I cover plaint and written statement and pleadings. Alright, I'll be covering them after that in the sequence. But for now, just have a look at order 4. It talks about institution of the suits. It says, suit to be commenced by a plaint. Every suit shall be instituted by presenting a plaint in duplicate to the court or such officer at its appoint in this behalf. Then it says every plaint shall comply with the rules contained in order 6 and 7 so far as they are applicable, and plaint shall not be deemed to be duly instituted unless it complies with the requirement specified in sub-rule 1 and 2. So there you have it. CPC in order 4 itself says that suits are instituted by presentation of a plaint in duplicate. For this purpose, you have to also refer to section 26 of the CPC. Let us see what that says. It says, every suit shall be instituted by presentation of a plaint or in such other manner as may be prescribed. Then subsection 2 of section 26 says, in every plaint, fact shall be proved by an affidavit. ठीक है, तो affidavit लगाते हैं यहाँ plaint के साथ. It is always there. So facts have to be proved by how? By an affidavit. However, in the context of commercial disputes, after the Commercial Codes Amendment Act, in the context of commercial disputes, affidavit shall be in the form and manner as prescribed under order 6 of rule 15A. ठीक है, कमर्शियल डिस्प्यूट्स के मामले में जो एफिडेविट होगा वो उस फॉर्म और मैनर में होगा जैसा कि रूल 15A ऑफ ऑर्डर 6 में प्रिस्क्राइब्ड है. सो वी विल कम टू दैट व्हेन आई विल टीच यू अबाउट प्लीडिंग. देखिए अभी तो ये नया अमेंडमेंट है, तो इस पर कोई नुआंस अभी एज सच प्रेजेंट नहीं हुआ है. सो इन दैट रिगार्ड यू आर सो फार लकी. ठीक है, क्योंकि आप अगर बेसिकली प्लेंट समझ लेते हैं तो आपको बस इतना समझना होता है कि ओके कि जब हम वेरीफाई करवा रहे हैं कमर्शियल डिस्प्यूट का कोई मैटर, तो उन मैनर्स में हमें थोड़ा बहुत अमेंडमेंट और थोड़े बहुत अलग प्रोविजंस का ध्यान रखना होता है. इतनी चीज़ों को लेके आपको अवेयर रहना है एंड दैट इज इट, उससे ज़्यादा नहीं. लेकिन प्राइमरली आपको क्या समझना है? आपको प्राइमरली प्लेंट समझना है. ठीक है, तो प्लेंट आप तब समझेंगे जब आप पहले प्लीडिंग समझेंगे. ठीक है, तो हम उसी सीक्वेंस में चलेंगे, प्लीडिंग्स, प्लेंट और फिर रिटन स्टेटमेंट. अभी के लिए बस आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ऑर्डर 4 को रीड किया जाएगा विथ सेक्शन 26 ऑफ द सीपीसी. ठीक है, फिर ऑर्डर 4 पे वापस आइए और उसका सबसेक्शन 2 देखिए और कहीं लिख लीजिएगा ऑर्डर 4 के पास रेड विथ सेक्शन 26 ऑफ द सीपीसी. ठीक है, ऑर्डर 4 के पास लिख लीजिएगा. देन ऑर्डर 4 का रूल 2 देखिए, रजिस्टर ऑफ सूट्स. इट सेज the court shall cause the particulars of every suit to be entered in a book to be kept for that purpose, called register of civil suits. Such entries shall be numbered in every year according to the order in which the plaints are admitted. ठीक है, ऑर्डर 4 एक छोटा सा ऑर्डर है और ये अक्सर पूछा जाता है प्रीलिम्स में, इसलिए आपको बताना जरूरी है यहाँ पर. तो देखिए, when you read section 26 with order 4 rule 1, then you get an idea that every suit must be instituted by presentation of a plaint, and then in accordance with order 4 rule 1 you have to also present a plaint in duplicate. ठीक है, तो यहां पे मेन चीज क्या समझने वाली है? मेन चीज आपको ये समझने वाली है कि एज अ जनरल मैटर ऑफ नॉर्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ सीपीसी सूट तभी कमेंस होता है जब प्लेंट दी जाती है. ठीक है, सूट कब कमेंस होता है? ध्यान रखिए, मैंने सूट बोला है, ट्रायल नहीं. सूट कब कमेंस होता है? बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट. ये मैंने अभी बोल दिया कि दोनों में डिफरेंस है. ट्रायल इज अ डिफरेंट थिंग, सूट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. वो सूट का कमेंसमेंट
ट्रायल का कमेंसमेंट मान लेते हैं, नहीं, सूट इज कमेंस्ड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट, ये बात याद रखिएगा। एंड व्हाट इज अ प्लेंट? Plaint is a private memorial tendered to a court in which a person sets forth his cause of action. ठीक है? In other words, plaint is an exhibition of an action in writing. अब देखिए, प्लेंट को प्रेजेंट करने का एक प्रॉपर टाइम भी होता है, ठीक है? जनरली प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट मस्ट बी ऑन द वर्किंग डे ऑफ द कोर्ट एंड ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स ऑफ द कोर्ट, ठीक है? लेकिन एक चीज का और भी ध्यान में रखिएगा कि अगर जज चाहे तो ही मे एक्सेप्ट अ प्लेंट एट हिज ओन रेसिडेंस और एट एनी अदर प्लेस इवन आफ्टर ऑफिस आवर्स, दो ही इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट। ये जज का डिस्क्रेशन होता है कि कभी कभी अगर जज चाहे तो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में प्लेंट भी एडमिट कर ले, ठीक है, इवन आफ्टर ऑफिस आवर्स। क्योंकि स्टैट्यूट ये कहीं नहीं कहती है कि आप एक वर्किंग टाइम लिमिट के अंदर फाइल करिएगा, लेकिन एज अ मैटर ऑफ जनरल प्रैक्टिस आप कोर्ट में जब जाएंगे तो उसके ऑफिस आवर्स में ही जाएंगे, ठीक है? अब जनरली ऑफिस आवर्स ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे तक चलते हैं मैक्सिमम कोर्ट्स में, तो शाम 6 बजे के बाद अगर आप प्लेंट प्रेजेंट करने जाएंगे तो जनरली आपको कोई नहीं मिलेगा। लेकिन मान लीजिए लास्ट डे ऑफ लिमिटेशन है और आपको टेंशन है कि भाई अगर आज हमने नहीं फाइल किया तो हमारा सूट बार्ड हो जाएगा, तो इन एक्सेप्शनल सिचुएशंस आप जज के पास भी जा सकते हैं एंड जज इन हिज डिस्क्रेशन इफ ही सो वांट्स may even accept a plaint as is at its own residence, या किसी और जगह पे भी अगर आपको वो जज साहब मिल गए तो उनको भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशंस देखी गई हैं और वैलिडली रिकॉग्नाइज भी की गई हैं। वैलिडली रिकॉग्नाइज करने का ये मतलब है कि ऐसी सिचुएशन में ये नहीं माना गया है कि इट इज अपोज टू लॉ, ये माना गया है कि येस इट इज वेल विद इन द पावर्स एंड डोमिनियन ऑफ अ जज टू डू सो। थोड़ा और बताता हूँ कि जब प्लेंट प्रेजेंट हो जाती है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, तो इट इज़ एक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टैम्प रिपोर्टर, ठीक है? उसको स्क्रूटनाइज करता है वो स्टैम्प रिपोर्टर, देखता है कि भाई पेपर ठीक है या नहीं, एडिक्वेटली स्टैम्प्ड है या नहीं, ठीक है? फिर अगर उसमें कोई डिफेक्ट्स मिलते हैं स्टैम्प ऑफिस को या स्टैम्प रिपोर्टर को, तो ऐसी सिचुएशन में वो आपको डिफेक्ट नोटिफाई कर देता है। या मान लीजिए आपने जिस जगह पे प्रोड्यूस की है प्लेंट, ठीक है, डेजिग्नेटेड ऑफिस होता है, तो वहाँ पे हो सकता है कि कुछ ऑफिस ऑब्जेक्शन उठाए जाएं कि देखिए आपने कुछ चीज़ें गलत लिखी हैं या कुछ पेपर्स मिसिंग हैं या कुछ एनेक्शर जो आपने मेंशन किए हैं वो मिसिंग है एक्सेट्रा। तो ऐसी सिचुएशन में ऑफिस ऑब्जेक्शन अगर उठाए जाते हैं या अगर प्लेंट में थोड़ा डिफेक्ट है, तो ऐसी सिचुएशन में जो प्लेंटिफ या एडवोकेट है ना, उन ऑब्जेक्शंस को रिमूव कर सकता है। उसके बाद जो प्लेंट है वो प्रॉपर्ली एडमिट हो जाएगी और फिर सूट विल बी नंबर्ड, ठीक है? तो ये एक आपका थोड़ा वो प्रैक्टिकल पॉइंट था। अब देखिए कई चीज़ें यहाँ पे इन अ लेक्चर तो एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप देख के ही समझ पाएंगे, लेकिन बेसिकली ऐसा ही होता है। अब कुछ खास चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर इफ यू आर फाइलिंग द सूट ऑन बिहाफ of a military or a naval man or an airman, then in that situation you have to comply with order 28, ठीक है, which talks about suit by or against military or naval men or airmen. वैसे ही if you are filing a suit by or against corporation, then you have to comply with order 29 of the CPC. अब देखिए ऑर्डर्स तो बाय और अगेंस्ट की बात करते हैं, लेकिन हम क्योंकि अभी प्लेंट की बात कर रहे हैं तो मैं उसी कंटेक्स्ट से आपको बात करता हूं, ठीक है? और वैसे ये ऑर्डर्स लिख लीजिएगा कहीं, जिससे आपको एक आइडिया हो कि जब आप इनके बिहाफ पे फाइल कर रहे हैं देन यू हैव टू कंप्लाई विद द रूल्स दैट आर लेड डाउन अंडर दोज ऑर्डर्स दैट आई एम मेंशनिंग राइट नाउ। अब मान लीजिए यू आर सुइंग ऑन बिहाफ ऑफ अ कॉर्पोरेशन, सो order 29 rule 1 says that in a suit by or against a corporation, any pleading may be signed and verified on behalf of a corporation by the secretary or by the director or the other principal officer of the corporation who is able to depose on the facts of the case. तो मतलब प्लेंट पे साइन किसका होगा और वेरिफिकेशन किसका होगा? In the case that a corporation is suing, by the secretary of the corporation or by director or by other principal officer of the corporation who is able to depose as to the fact of the case. ये बात याद रखिएगा, ठीक है? Similarly, if you are suing on behalf of the firm or you are suing against the firm, then you have to comply with order 30,
और यहाँ पे मैं पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा हूँ. ओके, द फर्म, हम लोग जब ये टर्म यूज करते हैं, इट इज इन कंटेक्स्ट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. वैसे ही व्हेन यू सुइंग ऑन बिहाफ ऑफ अ ट्रस्टी और अगेंस्ट अ ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर और एन एडमिनिस्ट्रेटर, देन यू हैव टू कंप्लाई विद ऑर्डर 31. Similarly, when a suit is by or against the minor, then you have to comply with order 32. And when the suit is by an indigent person, then you have to comply with order 33. So basically, as a rough note, you should keep in mind order 28 to 33. ठीक है. अब 33 की एक खास बात देखिएगा ऑर्डर 33 की. अब देखिए, इन ऑर्डर्स पे थोड़ा एलैबोरेशन करना है, स्पेसिफिकली ऑर्डर 32 और 33, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे कुछ सवाल आता है, लेकिन ये आगे का टॉपिक है, काफी आगे का टॉपिक है. पर अभी एक ब्रीफ ओवरव्यू आप ले लीजिए कि ऑर्डर 33 में सूट्स बाय इंडिजेंट पर्संस की बात की गई है, नॉट सूट अगेंस्ट इंडिजेंट पर्सन. ओके, सो यू गेट एन आइडिया कि इससे प्रीसीडिंग जितने भी ऑर्डर्स थे वो बाय और अगेंस्ट की बात करते हैं, लेकिन ऑर्डर 33 ओनली टॉक्स अबाउट सूट बाय इंडिजेंट पर्सन. ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा. बेसिकली ये ऑर्डर्स फ्रॉम 28 टू 33 आपको ये बताएंगे कि कौन प्लेंट को वेरीफाई करेगा, आपको क्या क्या फॉर्मेलिटी से कंप्लाई करना है. इन सारी चीज़ों के बारे में आपको ये ऑर्डर्स बताएंगे जब स्पेसिफिकली ऐसा मैटर हो. कि मान लीजिए कॉर्पोरेशन का मैटर है, देन यू आर रेफरिंग टू ऑर्डर 29. जब किसी पार्टनरशिप फर्म का मैटर है, देन यू आर रेफरिंग टू ऑर्डर 30 एसेट्रा. वैसे कोई माइनर है, देन यू आर रेफरिंग टू ऑर्डर 32, है ना. यू विल प्रेजेंट द प्लेंट ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर बीइंग हिज नेक्स्ट फ्रेंड, क्योंकि माइनर तो खुद सू नहीं कर सकता. तो ऐसी सिचुएशन में आप एक सिचुएशन का ध्यान रखिएगा कि ये ऑर्डर्स फ्रेम किए गए हैं जिससे ये आपको बता पाएं कि प्लेंट का वेरिफिकेशन इन सर्कमस्टेंसेस में कौन करेगा, कौन प्लेंट के फैक्ट्स को वेरीफाई करेगा, कौन एफिडेविट पे साइन करेगा, कौन प्लेंट पे साइन होगा, या क्या फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, एसेट्रा एसेट्रा. वो सारे ऑर्डर्स बताएंगे. ठीक है, लेकिन एक्सेप्शनल सिनेरियो है, हमें पहले जनरल कंटेक्स्ट में समझना है. मैंने अभी आपको बता दिया जिससे आपका दिमाग इस कंटेक्स्ट में भी ओपन रहे. अब एक चीज जान लीजिए, एग्जाम में ऑर्डर 28, 29, 30 और 31 को लेके सवाल नहीं आते. ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली तो आप इन सिचुएशंस को एनकाउंटर करेंगे. तो ऐसी सिचुएशन में जरूर अवेयर रहिएगा कि लेट अस सपोज यू आर रिप्रेजेंटिंग अ कंपनी इन अ सिविल कोर्ट, तो यू शुड कीप इन माइंड द फॉर्मेलिटीज दैट आर लेड डाउन इन ऑर्डर 29. ठीक है, सिमिलर इज द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यू हैव टू कीप इन माइंड ऑर्डर 30. तो ऐसे चलिएगा. ठीक है, जनरल कंटेक्स्ट में तो मैं समझाऊंगा, लेकिन इन सारे कंटेक्स्ट को भी लेके आपको अवेयर रहना होता है कि भाई क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं जब कॉर्पोरेशन है, पार्टनरशिप फर्म है, या इंडिजेंट पर्सन है, या माइनर सू करना चाहता है, एसेट्रा. तो अभी तो मैं सू करने के कंटेक्स्ट से बात कर रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रॉम ऑर्डर 28 टू 32 इट टॉक्स अबाउट सूट्स बाय और अगेंस्ट. ठीक है, और ऑर्डर 33 जो इंडिजेंट पर्सन से रिलेट करता है सिर्फ वही है जो बात करता है सूट्स बाय एन इंडिजेंट पर्सन, नॉट अगेंस्ट. अगेंस्ट की बात नहीं करता, सूट बाय एन इंडिजेंट पर्सन, जिनको दूसरे शब्दों में पॉपर्स भी कहा जाता है. सूट बाय अ पॉपर इन फॉर्म ऑफ पॉपरस. सो यू ऑल्सो राइट डाउन नियर ऑर्डर 4 दैट रेड विद दीज ऑर्डर्स. ठीक है, अब एग्जाम में आपको वो ऑर्डर्स लिखने की जरूरत नहीं है. एग्जाम में आपको सेक्शन 26 और ऑर्डर 4 इस पे एलैबोरेशन करना है. आप फिर जब इन पे एलैबोरेशन कर लें तो ब्रीफली मेंशन कर दें कि ऐसी ऐसी सिचुएशन में अगर कॉर्पोरेशन का मैटर है तो इधर, अगर एग्जीक्यूटर, ट्रस्टी या एडमिनिस्ट्रेटर का मैटर है तो इस ऑर्डर में, अगर सेलर, आर्मी मैन या नेवल फोर्स के किसी पर्सन से मैटर है या सूट इंस्टीट्यूट करना है तो इस ऑर्डर में, एसेट्रा. यू कैन टॉक अबाउट इट लाइक दिस इन ब्रीफ. उस पर एलैबोरेशन की कोई जरूरत नहीं होती है. ठीक है, आप उसे मेंशन कर सकते हैं व्हेन यू हैव डेल्ट विद द सब्सटेंशियल पार्ट. तो इससे आपको औरों के कंपैरिजन में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे बिकॉज यू आर मोर अवेयर अबाउट द प्रोसीजर देन द रेस्ट ऑफ देम. जो प्रैक्टिस एस्पिरेंट्स हैं, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनको इस कंटेक्स्ट में ज्यादा अवेयर रहना होगा क्योंकि दे वुड बी एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग इनसाइड अ कोर्ट रूम. ठीक है, तो दे शुड नो अबाउट द फॉर्मेलिटीज दैट हैज टू बी कंप्लाइड विद. ठीक है, सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू ऑर्डर 6 विच इज प्लीडिंग्स. अब इस बात की टेंशन मत लीजिएगा कि ऑर्डर 3 और ऑर्डर 5 का क्या होगा. ऑर्डर 3 और ऑर्डर 5 जो है उनमें अपने में कोई नुआंस नहीं है ज़्यादा, वो बेसिकली बेयर एक्ट लेवल के हैं. तो हम उनको बाद में करेंगे. जब मैं प्लेंट खत्म कर लूँगा तो ऑर्डर 3 और ऑर्डर 5 भी कवर कर दूंगा.
लेकिन वो ऐसे ऑर्डर्स हैं जिसमें कोई नुआंस नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत सिंपल बेसिक लेवल के हैं कि बेयर एक्ट रीडिंग से ही सारी चीज़ें हो जाती हैं, बोथ इन प्रैक्टिस एंड ऑल्सो इन जुडिशियल आंसर राइटिंग। तो बेसिकली जो मेन कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं पहले हम उनसे डील करेंगे। जो प्राइमरी हैं वो है प्लीडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद हम प्लेन से डील करेंगे, ठीक है। सो कम टू ऑर्डर 6। अब ऑर्डर 6 कहता है कि प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये प्लीडिंग ऑफ द पार्टीज को रेफर कर रहा है। जो प्लेंटिफ की प्लीडिंग होती है उसको प्लेंट कहा जाता है, जो डिफेंडेंट की प्लीडिंग होती है उसको रिटन स्टेटमेंट कहा जाता है। सो इट सेज प्लीडिंग शैल मीन plaint or written statement, very simply. However, in Mogha's law of pleading, pleadings have been defined as that pleadings are statement in writing drawn up and filed by each party to a case, stating what his contentions will be at the trial and giving all such details as his opponent needs to know in order to prepare his case in answer. So according to me, Mogha's definition is a bit better when you are trying to explain कि what does order 6 rule 1 properly means. अब order 6 rule 1 ने तो basically आपको ये बोल दिया कि plaint shall be defined as plaint और pleading shall be defined as plaint और written statement. उसने बड़े simply आपको बोल दिया। लेकिन जब भी आप इस चीज को explain कर रहे हो तो भले you don't quote Mogha, but in essence ये बातें जरूर करिएगा कि pleadings are statement in writing drawn up and filed by each party to a case, stating what his contentions will be at trial and giving all such details as his opponent needs to know in order to prepare his case in answer. अब बेसिकली ये जान लीजिए कि what is the object of pleading, ठीक है। ये एग्जाम में आपको लिखना होगा, जब भी प्लीडिंग पे आंसर लिख रहे हैं तो हमेशा प्लीडिंग का ऑब्जेक्ट भी जरूर मेंशन करें। इससे ये पता चलता है यू अंडरस्टैंड द रैशनल दैट व्हाई द लेजिस्लेचर हैज इंट्रोड्यूस्ड अ पर्टिकुलर प्रोविजन। See, the object of the pleading is to bring parties to a definite issue and to diminish expense and delay and to prevent surprise at the hearing. In the case of Thorpe versus Holdsworth, its citation is 1876, volume number 3, Chancery Division, page number 637. It was stated that the whole object of pleading is to bring parties to an issue, and the meaning of the rules relating to pleadings was to prevent the issue being enlarged, which will prevent either party from knowing when the cause came on trial what the real point to be discussed and decided was. In fact, the whole meaning of the system is to narrow down the parties to definite issue and thereby diminish expense and delay, especially as regards to the amount of testimony to be required on either side of the hearing. तो ये थॉर्प वर्सेस होल्ड्सवर्थ में कहा गया था। अब देखिए ये जो प्लीडिंग्स के रूल हैं इनके ऑब्जेक्ट दो तरीके से आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट प्लीडिंग का ये होता है इज टू अफोर्ड द अदर साइड एन इंटीमेशन रिगार्डिंग द पर्टिकुलर फैक्ट ऑफ हिज केस सो दैट दे मे बी मेट बाय अदर साइड। तो पहला ऑब्जेक्ट क्या हुआ, to afford the other side the intimation regarding a particular fact of his case so that they may be met by other side। कि मतलब दूसरी पार्टी को पता चले कि भाई पहली पार्टी का केस क्या है, क्यों वो केस ला रही है ना। मान लीजिए प्लेंटिव केस ला रहा है तो डिफेंडेंट को तो पता तो होना चाहिए ना कि वो क्यों ला रहा है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज टू गिव इंटीमेशन टू द अदर साइड। Secondly, it is to enable the court to determine that what really is the issue between the parties। ये second object है। And for my observations that I just made कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इसके लिए I rely upon the judgment of Supreme Court in वीरेंद्र काशीनाथ versus विनायकन जोशी decided on 11th November 1998। अब देखिए जब भी आप ये ऑब्जेक्ट मेंशन कर रहे हैं आपको केस लॉ मेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये केस लॉ मैं बस आपको साइटेशन के पर्पस के लिए बता रहा हूं, लेकिन आपको ये मेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिंपली इतना लिख सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट ऑफ प्लीडिंग इज टू ब्रिंग द पार्टीज टू अ डेफिनेट इशू एंड टू डिमिनिश एक्सपेंस एंड डिले एंड टू प्रिवेंट सरप्राइज एट द हियरिंग। इतने से आपको ऑब्जेक्ट चल जाएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। आई एम एलैबोरेटिंग मोर सो दैट यू अंडरस्टैंड मोर, ठीक है। अब देखिए प्लीडिंग्स ना कोर्ट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कोर्ट, क्योंकि प्लीडिंग्स प्रोवाइड एज अ गाइड फॉर द कोर्ट अबाउट द प्रॉपर मोड ऑफ ट्रायल। कोर्ट को यह पता होता है कि अच्छा इशू क्या है बिटवीन पार्टीज,
ठीक है, पार्टीज किस मुद्दे पे झगड़ रही हैं, वो तो कोर्ट को तभी पता चलेगा जब वो पार्टीज की प्लीडिंग देखेगा, प्लेंटिफ की प्लेंट और डिफेंडेंट का रिटन स्टेटमेंट। जब वो ये देखेगा तभी तो वो किसी इशू पे आ पाएगा कि अच्छा पार्टीज के बीच में ये इशू है, फिर वो इशू फ्रेम करेगा, उस इशू पे एविडेंस लेड होगा। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइड होते हैं फॉर द कोर्ट टू डिटरमाइन अ प्रॉपर मोड ऑफ ट्रायल। They also demonstrate that on which party the burden of proof lies and who has the right to open his case. ठीक है, they also determine the range of admissible evidence which the parties should adduce at the trial, and they also lay down the limit on the relief which can be granted by the court. तो pleadings क्यों important है? Because they provide a guide for the proper mode of trial. They demonstrate upon which party the burden of proof lies and who has the right to open his case. They also determine the range of admissible evidence which the party should adduce at the trial, and they lay down the relief which can be granted by the court. ठीक है, so you understand why pleadings are important. कभी कभी pleadings को कहा जाता है the foundation of the suit, which they actually are. अब देखिए सिविल केसेस में जो pleadings हैं उनको फाउंडेशन ऑफ द सूट्स ऐसे ही नहीं कहा जाता है, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्लीडिंग के ही बेसिस पे कोर्ट जो है ना इशू फ्रेम करता है, उन्हीं इशू के बेसिस पे एविडेंस एड्यूस होता है और उन्हीं एविडेंस के बेसिस पे एक जजमेंट आता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई प्लीडिंग्स आर कॉल्ड द फाउंडेशन ऑफ द सूट, क्योंकि अगर आपने कोई फैक्ट प्लीड ही नहीं किया है तो कोर्ट को पता ही नहीं चलेगा कि वो इशू में, जब इशू ही उस पर नहीं बनेगा तो उस पर एविडेंस एड्यूस नहीं होगा, और जब वो नहीं होगा तो इशू डिसाइड नहीं होगा, और इशू डिसाइड नहीं होगा तो आपको उस एस्पेक्ट पे कभी भी रिलीफ नहीं मिल सकती। सो दिस इज व्हाई दे आर कॉल्ड द फाउंडेशन ऑफ द सूट्स एंड दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेट अस गिव यू एन इलस्ट्रेशन ऑफ टाइटल एंड पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी। ठीक है, एक आपको एग्जाम्पल देते हैं टाइटल सूट का जहां पे प्लेंटिफ प्लीड कर रहा है फॉर असर्टेनिंग द टाइटल एंड पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखिए पहले पोजेशन का जनरल नेचर जान लीजिए। जनरली पोजेशन इज एन इंसिडेंस ऑफ ओनरशिप and it can be transferred by the owner of immovable property to another person, such as in a mortgage or in a lease. वो चाहे तो ट्रांसफर भी कर सकता है अपनी पोजेशन, बट पोजेशन nonetheless is an incidence of ownership. अब देखिए पोजेशन is important when there are no title documents and other relevant records before the court. But once document and records of the title come before the court, then it is the title which has to be looked first and due weightage given to it. In other words, what I am trying to say is कि अगर मान लीजिए किसी सिचुएशन में टाइटल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, कि हाउ यू आर द ओनर, जिसको आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स कहते हैं या टाइटल डीड्स भी कहते हैं, वहाँ पे मान लीजिए वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो कोर्ट पहले पोजेशन को देखेगा। लेकिन अगर जहाँ पे टाइटल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो कोर्ट सबसे पहले टाइटल डॉक्यूमेंट्स को देखता है, उसकी लीगैलिटी को डिटरमाइन करता है, उसको प्रॉपर वेटेज देता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए एक और चीज आती है लॉ में कि देयर इज जनरली अ प्रिजम्पशन कि अगर कोई पर्सन प्रॉपर्टी होल्ड किया हुआ है जो ओनर नहीं है, हु इज नॉट द ओनर, अगर ये कोर्ट के सामने ये फैक्ट है कि दिस पर्सन इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट द ओनर, तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन भी बनाते हैं कि इट इज देन परमिसिव और ऑन बिहाफ ऑफ द टाइटल होल्डर, कि जो भी पर्सन इज इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी वो ओनर की परमिशन के साथ प्रॉपर्टी की पोजीशन में है। अब कोर्ट्स के सामने कौन सा मैटर इन डिस्प्यूट आता है? राइट टू रिमेन एंड कंटिन्यू इन पोजेशन, है ना। राइट टू रिमेन एंड कंटिन्यू इन पोजेशन इज मोस्टली द मैटर इन कंट्रोवर्सी बिफोर द कोर्ट। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग अ सूट कैन बी फाइल्ड बाय द टाइटल होल्डर और द ओनर फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन, or it can be one for ejectment of an ex-lessee, or for mandatory injunction requiring a person to remove himself, or it can be a suit under section 6 of specific relief act to recover possession. ये सिर्फ illustrative examples दे रहा हूं कि एक टाइटल होल्डर जो है वो एक सूट फाइल कर सकता है फॉर रिकवरी ऑफ द पोजेशन, या वो चाहे तो सूट फाइल कर सकता है फॉर इजेक्टमेंट ऑफ एन एक्स लीसी, या वो सूट फाइल कर सकता है फॉर अ मैंडेटरी इंजंक्शन रिक्वायरिंग अ पर्सन टू रिमूव हिमसेल्फ, और ही कैन फाइल अ सूट अंडर सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सो माइरिड ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके पास। अब किसी भी टाइटल सूट फॉर पोजेशन में दो पार्ट होते हैं, यह बात याद रखिएगा। इन एनी टाइटल सूट फॉर पोजेशन देयर आर टू पार्ट्स। पहला होता है एडजुडिकेशन फॉर टाइटल,
पहले कोर्ट डिटरमाइन करेगा कि किसके पास टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी है, और फिर दूसरा पार्ट जो डिटरमाइन करता है कोर्ट वो है एडजुडिकेशन फॉर पोजेशन, कि वो इज एंटाइटल्ड टू पोजेशन। ठीक, तो एनी टाइटल सूट फॉर पोजेशन विल हैव टू पार्ट्स, फर्स्ट इज एडजुडिकेशन ऑफ द टाइटल एंड सेकंड इज एडजुडिकेशन ऑफ पोजेशन। सो इफ अ टाइटल डिस्प्यूट इज रिमूव्ड, एक बार टाइटल डिस्प्यूट रिमूव हो गया and it is established that title is there in one party, let us suppose plaintiff has the title, then in effect the suit will now transform into a suit for ejection, where the defendant must plead and prove why he mustn't be ejected. अगर एक बार टाइटल डिस्प्यूट दोनों पार्टी के बीच में डिसाइड हो गया, प्लेंटिफ का मैं ओनर हूं, डिफेंडेंट का मैं ओनर हूं, अब मान लीजिए कोर्ट ने फाइंडिंग की कि इट इज द प्लेंटिफ हु इज द ओनर, तो अब जो सूट है उसका नेचर बदलेगा, क्योंकि नाउ टाइटल हैज बीन डिटरमाइंड, सो इट बिकम्स अ सूट फॉर इजेक्शन। अब डिफेंडेंट को यह प्लीड करना है कि भाई वो क्यों ना इजेक्ट किए जाएं, वो क्यों ना निकाले जाएं, एंड ही हैज टू प्लीड एंड प्रूव इट, ही हैज टू प्लीड एंड प्रूव इट। देखिए प्रूव ही तभी कर पाएगा व्हेन ही एक्चुअली प्लीड्स इट। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर, वंस द टाइटल डिस्प्यूट इज डिसाइडेड एंड द टाइटल इज एस्टैब्लिश्ड इन वन पार्टी, then the suit will become a suit for ejectment, where the defendant must plead and prove why he must not be ejected. So, in an action for recovery of possession of immovable property or for protecting possession thereof, upon the legal title to the property being established, the possession or occupation of the property by the person other than the holder of the legal title will be presumed to have been under and in subordination to the legal title, and it will be for the person resisting the claim for recovery of possession or claiming a right to continue in possession to establish that he has such right. In other words, wherever pleadings and document establish title to a particular property and possession is in question, it will be for the person in possession to give sufficiently detailed pleadings, particulars and documents to support his claim in order to continue in possession. अगर वो नहीं प्रूव कर पाता या नहीं प्लीड करता है तो he will be ejected from the property. So, in order to do justice, it is necessary that parties give all the details of the pleadings with their particulars. Once the title is prima facie established, it is for the person who is resisting the title holder's claim for possession to plead with sufficient particularity on the basis of his claim to remain in possession and place before court all such documents as in ordinary course of human affairs are expected to be there. Only if the pleadings are sufficient would an issue be framed by the court and the matter would be sent for trial, where the onus would be on whom? Onus would be on the defendant to prove the averred facts and documents. And in this situation, the person averring a right to continue in possession shall, as far as possible, give a detailed, particularized, specific pleading along with the documents to support his claim and details of a subsequent conduct which establishes his possession. तो कुछ इलस्ट्रेटिव चीज़ें बता देता हूँ कि कौन कौन सी डिटेल्स मेंशन करने की ज़रूरत होती है. पहला, who is or are the owner or owners of the particular property. दूसरा, टाइटल टू द प्रॉपर्टी. तीसरा, who is in possession of the title documents. चौथा, आइडेंटिटी ऑफ द क्लेमेंट और क्लेमेंट्स टू पोजेशन. पांचवा, डेट ऑफ एंट्री इनटू पोजेशन. छठा, how he came into possession, whether he purchased the property or inherited or got the same in gift or by any other method. Seventhly, in case he purchased the property, what is the consideration? If he has taken it on rent, how much is the rent, license fees or the lease amount? Eighthly, if he has taken it on rent, license fees or lease, then insist on the rent deed, license deed or lease deed, ये भी produce करनी होंगी. Then ninthly, who are the person or persons in possession or occupation or otherwise living with him, and in what capacity, whether as family members, friends, servants, etc. Then further he has to plead the subsequent conduct, that is any event which might have extinguished his entitled to possession or caused the possession to shift therein, and he has to also plead the basis of his claim on which he is demanding to be continue in possession.
he has to plead before the court the basis of the claim as to his right to continue in possession. ये कुछ illustrative details थी जो mention करनी जरूरी है pleadings में. देखिए इलस्ट्रेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है. ये फैक्ट और सर्कमस्टेंसेज में चीज़ें घट और बढ़ सकती हैं. ठीक है, इट इज़ एन इलस्ट्रेशन, इट इज़ नॉट एन एग्जॉशन. अब देखिए इन प्लीडिंग के साथ कोर्ट को डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी, कोर्ट जो है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ पे भी इंसिस्ट करेगा. अलॉन्ग विद द प्लीडिंग्स यू हैव टू एनेक्स द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इफ यू आर रिलाइंग अपॉन दोज डॉक्यूमेंट्स. अभी जब आप प्लेंट पढ़ेंगे देन यू विल फाइंड इट कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट पे रिलाई करते हैं देन यू हैव टू एनेक्स दैट डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द प्लेंट. ठीक है, लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या है? कोर्ट तो सबसे पहले प्लीडिंग एग्जामिन करेगा ना, और वो ये देखेगा कि प्लीडिंग स्पेसिफिक है या नहीं, और फिर साथ में सपोर्टिंग मटेरियल भी देखेगा. देन इट विल पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स. अगर प्लीडिंग ही सफिशिएंट डिटेल नहीं देगी तो वो कभी भी इशू नहीं बनाएगा कोर्ट. कोर्ट देन विल रिजेक्ट द क्लेम. इशू बनने के लिए प्लीडिंग हैज टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक. ऑन वेग प्लीडिंग्स इश्यूज विल नेवर अराइज. Always remember, the pleadings has to be specific. Only when they are so established does the question of framing an issue arise. And since framing of an issue is an extremely important stage in a civil trial, the judges are expected to carefully examine the pleadings and documents before framing the issue in a given case. So, in pleadings, whenever a person claims right to continue in possession of another property, it becomes necessary for him to plead with specificity about who was the owner, on what date did he enter into possession, in what capacity and in what manner did he conduct his relationship with the owner over the years till the date of the suit. He must also give details on what basis he is claiming a right to continue in possession. Until the pleadings raise a specific issue or raise a sufficient case, they will not constitute a sufficient claim of defense. So you can understand why the pleadings are important. They are very 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 important. So always remember, हमारे इलस्ट्रेशन में जो अभी मैंने आपको एग्जॉस्ट इलस्ट्रेटिव लिस्ट बताई कि जैसे कि डिफेंडेंट को क्या क्या प्लीडिंग्स में लिखना चाहिए, क्या क्या क्लेम करना चाहिए. अगर मान लीजिए उसने नहीं क्लेम किया तो कोर्ट उस पर इशू ही नहीं बनाएगा, और कोर्ट ने अगर इशू नहीं बनाया तो उस पर एविडेंस एड्यूस नहीं होगा. रिजल्ट क्या होगा? डिफेंडेंट विल बी डिफीटेड. ठीक है, कोर्ट सीधे डिक्री पास कर देगा इन द फेवर ऑफ द प्लेंटिफ, क्योंकि टाइटल प्लेंटिफ का एस्टैब्लिश हो चुका है. सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब एक टाइटल सूट फाइल हुआ है फॉर पोजेशन, देन एक बार टाइटल एडजुडिकेट हो गया और कोर्ट ने यह पा लिया कि प्लेंटिफ हैज द टाइटल, तो उसके बाद जब पोजेशन का जो सूट है ना वो इजेक्टमेंट का सूट बन जाएगा डिफेंडेंट के लिए. तो अगर डिफेंडेंट साहब कह रहे हैं कि आई मस्ट बी अलाउड टू कंटिन्यू इन पोजेशन, then he has to plead the specific facts that I just talked about. ठीक है, देखिए कौन ओनर है, टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी, कौन है पोजेशन इन द टाइटल डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिटी ऑफ द क्लेमेंट्स, डेट ऑफ एंट्री इनटू पोजेशन, हाउ ही केम इनटू पोजेशन. अगर वो रेंट एग्रीमेंट, लाइसेंस डीड या लीज डीड के बेसिस पे उसने प्रॉपर्टी होल्ड की गई है तो लीज डीड फाइल करे. बेसिस ऑफ हिज क्लेम क्या है कि क्यों ही शुड बी अलाउड टू कंटिन्यू इन पोजेशन, एसेट्रा एसेट्रा. ठीक है, always remember, whenever a person claims right to continue in possession of another's property, it becomes necessary for him to plead with specificity about who is the owner, on what date did he enter into possession, in what capacity and in what manner did he conducted his relationship with the owner over the years till the date of the suit. He must also give details on what basis he should be allowed a right to continue in possession. Until the pleadings itself raise that case, they will not constitute a sufficient claim for defense. और अगर प्लीडिंग्स ने ये मैटर रेज नहीं किया तो इशू नहीं बनेगा. इशू नहीं बनेगा तो क्या होगा? डिफेंडेंट विल बी इजेक्टेड फ्रॉम द प्रॉपर्टी, क्योंकि प्लेंटिफ के फेवर में टाइटल डिसाइड हो चुका है. ठीक है, सो यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि प्लीडिंग्स को बड़ा स्पेसिफिक और क्लियर रहना चाहिए, इवेसिव नहीं होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए. और टाइटल सूट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सूट्स इन सीपीसी. ठीक है, टाइटल सूट्स के एग्जाम्पल बहुत पॉपुलर होते हैं, बट सीपीसी इज नॉट जस्ट कन्फाइंड टू टाइटल सूट. वैसे ही इसी के इशू आप कमर्शियल मैटर्स में भी लगा सकते हैं कि भाई आपको प्लीडिंग बड़ी स्पेसिफिक रखनी होती है. अगर प्लीडिंग स्पेसिफिक नहीं है तो ये किसको नुकसान करेगी? ये उसको नुकसान करेगी जिसकी प्लीडिंग स्पेसिफिक नहीं है. ठीक है, जिसकी प्लीडिंग वेव है, एक्सप्रेस नहीं है, कुछ ढंग से लिखा नहीं है, तो ये उसी के अगेंस्ट चीजें जाने वाली हैं. ठीक है, दूसरी पार्टी ऑपोजिट पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगी. So you should understand that why the court says that in civil cases pleadings are extremely important and they are the foundation
ऑफ द सिविल सूट, दे आर द फाउंडेशन, क्योंकि उसी के बेसिस पे इशू बनते हैं, उसी के बेसिस पे एविडेंस एड्यूस होता है. जब इशू बनते हैं तो ये देखा जाता है कि किसके फेवर में इशू डिसाइड हुए हैं, और जिसके फेवर में इशू डिसाइड होंगे वो जीतेगा, जिसके खिलाफ इशू डिसाइड होंगे वो हारेगा. अगर मान लीजिए आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्लेम है, आपने वो प्लीडिंग में रेज ही नहीं किया, तो उस पर इशू नहीं बनेगा, रिजल्ट क्या होगा, आप हार जाएंगे. ठीक है, दैट इज वाई प्लीडिंग्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अब ये वाला ऑर्डर ध्यान रखिएगा, ऑर्डर 6 समझने वाला ऑर्डर ज़्यादा है. ठीक है, इसमें आपको रटने वाला काम नहीं है, इसमें आपको समझने वाला काम ज़्यादा है. नाउ यू रिफर टू रूल 2 ऑफ ऑर्डर 6. इट सेज pleading to state material facts and not the evidence. It says that every pleading shall contain and contain only a statement in concise form of the material facts on which the party pleading relies for his claim or defense, as the case may be, but not the evidence by which they are to be proved. Secondly, every pleading shall, when necessary, be divided into paragraph numbered consecutively, each allegation being, so far as convenient, contained in separate paragraph. Then dates, sums and numbers shall be expressed in a pleading in figures and as well as in words. तो जब आप रूल 2 पढ़ते हैं तो आपको कुछ जनरल प्रिंसिपल्स मिल जाते हैं जो बेसिक रूल ऑफ प्लीडिंग्स भी कहलाते हैं. पहला रूल है प्लीडिंग शुड स्टेट फैक्ट्स एंड नॉट लॉ. राइट इट डाउन. Secondly, facts stated should be material facts. Thirdly, pleading should not state the evidence. And fourthly, facts should be stated in a concise form. अगर कोई भी आपसे बोले ना कि प्लीडिंग को एक लाइन में समराइज करो, कि जस्ट लॉ ऑफ प्लीडिंग को एक लाइन में समराइज कर दो, कोई भी अगर आपसे बोले चाहे इंटरव्यू में या कहीं बाहर, तो आप उसको हमेशा बोलिएगा प्लीड फैक्ट्स नॉट लॉ. ये पूरा लॉ ऑफ प्लीडिंग एक ही लाइन में समराइज किया जा सकता है. प्लीडिंग्स में फैक्ट्स बताइए, लॉ मत बताइए. जुडिशियल नोटिस होता है कि जज को ऑलरेडी लॉ पता है. ठीक है, इफ यू रिमेंबर एविडेंस एक्ट सेक्शन 57, द जज टेक्स जुडिशियल नोटिस ऑफ ऑल लॉ, और जज को सारे लॉ पता होता है, ये प्रिजम्पशन होता है. सो योर ड्यूटी इज टू प्लीड फैक्ट नॉट लॉ. लेकिन अगर कहीं पे भी क्वेश्चन इज अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ, तो वो स्पेसिफिकली प्लीड करना है. ठीक है, if there is a question, if there is a mixed question of fact and law, then that has to be specifically pleaded. ठीक है. Similarly, if a point of law is required to be substantiated by facts, then it should be specifically pleaded in the pleadings. ठीक है, और उसमें भी वो facts plead करने जरूरी हैं जिसमें वो point of law substantiate होता है. That is the main thing. लेकिन जैसे आप ये ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं बताने की जरूरत है कि वो डॉक्यूमेंट कैसे इंटरप्रेट होंगे, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ दैट द जज विल डिसाइड. आपको उसको प्लीडिंग्स में प्लीड करने की जरूरत नहीं है. वैसे ही आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कोर्ट को कि देखिए ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इससे मेरे फेवर में प्रिजम्पशन अराइज होता है, और जज शुड प्रिज्यूम इन माय फेवर्स एंड द बर्डन ऑफ प्रूफ शुड बी ऑन डिफेंडेंट टू प्रूव हिज केस. ये सब आपको प्लीड करने की जरूरत नहीं है. अगर लॉ में प्रिजम्पशन अराइज होता है आपके फेवर में और वो मैंडेटरी प्रिजम्पशन है, तो देन द जज विल रेज दैट प्रिजम्पशन बाय इटसेल्फ. जैसे अगर चेक डिसऑनर हो गई है तो दे आर सर्टेन प्रिजम्पशंस व्हिच अराइजेस. आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो कौन से सेक्शन में कौन से प्रिजम्पशन अराइज होते हैं. ठीक है, जज विल प्रिज्यूम इट बाय इटसेल्फ. सो आप फैक्ट्स प्लीड करिए. यू हैव टू प्लीड द फैक्ट्स, यू डोंट हैव टू प्लीड द लॉ. ठीक है, तो सेकेंड प्रिंसिपल क्या है? प्लीड मटेरियल फैक्ट्स नॉट एविडेंस. मटेरियल फैक्ट्स को प्लीड करिए, एविडेंस को नहीं. तो अब ये सवाल उठता है कि मटेरियल फैक्ट्स क्या होते हैं. अब जस्ट राइट इट डाउन समवेयर कि मटेरियल फैक्ट्स को या फैक्ट इन इशू को फैक्टा प्रोबेंडा भी कहा जाता है, और फैक्टा प्रोबेंशिया किसको कहा जाता है? दे आर दोज फैक्ट्स बाय मींस ऑफ विच द फैक्ट इन इश्यूज आर प्रूव्ड. ठीक है, दूसरे शब्दों में फैक्टा प्रोबेंशिया को एविडेंशियरी फैक्ट्स भी कहा जाता है. तो आपको प्लीड क्या करना है? आपको प्लीड करना है फैक्टा प्रोबेंडा. ठीक है, या फैक्ट इन इशू, इन अदर वर्ड्स मटेरियल फैक्ट्स. ये आपको प्लीड करना है. द फैक्ट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड. ये आपको प्लीड नहीं करना है कि वो फैक्ट इन इशू प्रूव कैसे होंगे. दैट यू डोंट हैव टू प्लीड. जो एविडेंशियरी फैक्ट्स होते हैं
that are facta probentia that you don't need to plead. अब एक चीज याद रखिए, प्रीलिम्स में इस क्वेश्चन को हमेशा एक्सपेक्ट करिए, ये बहुत बार आता है कि आप कौन से फैक्ट्स प्लीड करेंगे कोर्ट के सामने, फैक्टा प्रोवेंडा, फैक्टा प्रोवेंशिया या बोथ या नन ऑफ द अबव. आपका आंसर हमेशा फैक्टा प्रोवेंडा होना चाहिए, फैक्टा प्रोवेंशिया नहीं. ठीक है, यू हैव टू प्लीड फैक्टा प्रोवेंडा, नॉट फैक्टा प्रोवेंशिया. अब ध्यान रखिएगा, फैक्टा प्रोवेंडा को फैक्टा प्रोवेंडम भी कहा जाता है. ये दोनों ही फैक्ट इन इशू या मटेरियल फैक्ट्स के लिए टर्म्स यूज होते हैं, लैटिन टर्म्स हैं. और फैक्टा प्रोवेंशिया किसको कहा जाता है? फैक्टा प्रोवेंशिया एविडेंशियरी फैक्ट्स को कहा जाता है. सो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज फैक्टा प्रोवेंडम एंड फैक्टा प्रोवेंडा. फैक्टा प्रोवेंडम एंड फैक्टा प्रोवेंडा आर मटेरियल फैक्ट्स, ठीक, या फैक्ट इन इशू. एंड फैक्टा प्रोवेंशिया इज व्हाट? इट इज एविडेंशियरी फैक्ट्स. ठीक है, the basis or the means by which facta provenda या facta provendum या fact and issue या material facts are to be proved. ठीक है, just be very clear about that. अब ये ध्यान रखिए कि देखिए whether a particular fact is material or not, ये तो fact और circumstances of the case determine करते हैं. ठीक है, लेकिन ये क्या कहते हैं, is a settled law that all material facts must appear in the pleading and the necessary particulars must be there so as to enable the opposite party to know the case that he is required to meet and to put him on his guard. ठीक है, or always remember if the party omits to state a material fact, so effect in law would be that the plea has not been raised at all and the court will not allow the party to lead evidence on the fact that has not been raised at the trial. Unless of course the court gives the permission to the party to amend the pleadings. ठीक है, amendment of the pleadings का भी टॉपिक है ऑर्डर 6 में, वो बड़ा थोड़ा बहुत बड़ा टॉपिक है, पर पहले तो आप प्लीडिंग समझिए ना. तो देखिए अगर मटेरियल फैक्ट्स को रेज नहीं किया गया है तो इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ये होगा कि आपने वो क्या कहते हैं कि वो इशू अराइज ही नहीं हुआ है. तो ऐसे सिचुएशन में आप उस मैटर पे एविडेंस नहीं लीड कर पाएंगे. यू वोंट बी अलाउड टू लीड एविडेंस on a material fact that you have not raised before the court. So always remember that you have to plead material facts. Now I will quote the judgment of Virendra Nath Gautam versus Satpal Singh. इसमें Supreme Court said that the expression material facts has neither been defined in CPC nor in any other act. According to the dictionary meaning, material means fundamental, vital, basic, cardinal, central, crucial, decisive, essential, pivotal, indispensable, elementary or primary. The phrase material facts therefore may be stated to be those facts upon which a party relies for his claim or defense. In other words, material facts are facts upon which the plaintiff's cause of action or defendant's defense depends. मतलब जिस पे प्लेंटिफ का कॉज ऑफ एक्शन डिपेंड करता है और डिफेंडेंट का डिफेंस डिपेंड करता है. So what particulars could be said to be material facts would depend upon the fact and circumstances of each case and no rule of universal application can be laid down. It is however absolutely essential that all basic and primary facts which must be proved at the trial by the party to establish the existence of a cause of action or defense are material facts and must be stated in the pleading by a party. ये जो पैरा है ना, ये आपको एग्जाम में लिखना होगा जब भी इसको लेके सवाल आए. इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट एक डिस्टिंक्शन बताता है कि मटेरियल फैक्ट्स और पर्टिकुलर्स में डिफरेंस क्या है. सुप्रीम कोर्ट सेज दैट अ डिस्टिंक्शन बिटवीन मटेरियल फैक्ट्स एंड पर्टिकुलर्स must not be overlooked. Material facts are primary or basic facts which must be pleaded by the plaintiff or by the defendant in support of the case set up by him, either to prove his cause of action or defense as the case may be. Particulars, on the other hand, are details in support of the material facts pleaded by the parties. They amplify, refine, and embellish the material facts by giving distinctive touch to the basic contours of a picture already drawn so as to make it full, more clear, and more informative. Particulars thus ensure conduct of a fair trial and would not take the opposite party by surprise. All material facts must be pleaded by the party in support of the case set up by him, since the object and purpose is to enable the opposite party to know the case he has to meet with. In absence of pleading, a party cannot be allowed to lead evidence. Failure to state even a single material fact, hence,
will entail dismissal of the suit or petition. Particulars, on the other hand, are the details of the case which is in nature of the evidence of the party would be leading at the time of trial. So basically एक लाइन में आप इसे समराइज कर सकते हैं, material facts, facta probanda या facta probandum are the facts that you have to specifically plead in the pleading. अगर आप plaintiff की साइड पे हैं तो उस पे आपका cause of action based होना चाहिए, वो आपके फैक्ट एंड इशू हैं या फैक्टा प्रोबेंडा या मटेरियल फैक्ट्स. अगर आप डिफेंस की साइड पे हैं तो मटेरियल फैक्ट्स वुड बी दोज फैक्ट्स जिस पे आपका पूरा डिफेंस टिका है. अगर आपने वो मटेरियल फैक्ट्स नहीं उठाए देन इन सिचुएशन ये माना जाएगा कि वो फैक्ट्स एग्जिस्टेंस में है ही नहीं और यू वोंट बी अलाउड टू लीड एविडेंस ऑन दैट मैटर. ऑफ कोर्स until and unless the court allows you to amend your pleadings, वो अलग सिचुएशन है. ठीक है. So it is a classic judgment on this point. अब एक केस ले लीजिए, एक लोकस क्लासिकस है, ये इलस्ट्रेटिव केस है बाय द वे. ठीक है, अगर आपको मन करे नोट डाउन कर लीजिएगा, ना मन करे देन जस्ट हियर इट एंड बी डन विद इट. केस का नाम है बोरोडेल वर्सेस हंटर. इसका साइटेशन है 1845 वॉल्यूम 5 MNG पेज नंबर 639. अब इससे आपको एक इलस्ट्रेशन मिलता है कि you have to plead facts not evidence. अब देखिए, A was insured with an insurance company. ठीक है. One of the term of policy was that the insurance policy would be void if the insurer committed suicide. अब A ने suicide कर ली by shooting himself with a pistol, and thereupon an action was brought against the company on the basis of the policy to claim the insurance money. ठीक है. अब इस केस में कंपनी को क्या प्लीड करना है? कंपनी शुड ओनली प्लीड दैट ए कमिटेड सुसाइड. ठीक है, क्योंकि ये फैक्टा प्रोबेंडा है. उसको ये प्लीड करने की जरूरत नहीं है कि ए वॉज मेलंकली फॉर वीक्स, मतलब कई हफ्तों से वो सैड या डिप्रेस चल रहा था और उसके बाद उसने अपनी वाइफ को भी कन्फेस किया था कि ही इज प्लानिंग टू किल हिमसेल्फ, और फिर उसने एक पिस्टल खरीदी थी इन ऑर्डर टू गिव अफेक्ट टू दिस डायबॉलिकल डीड. तो ये सारी चीजें उनको प्लीड करने की जरूरत नहीं, उनको बस इतना प्लीड करना है ए कमिटेड सुसाइड. अब क्योंकि ये जो बाकी के मैटर्स जो अभी मेंशन किए गए ये तो प्रूव करेंगे ना उसे, तो ये एविडेंशियरी फैक्ट हुआ. मटेरियल फैक्ट क्या हुआ? दैट ए कमिटेड सुसाइड. अब ये फैक्ट्स दैट ए वाज मेलंकली या डिप्रेस्ड फॉर वीक्स, ही कन्फेस्ड टू हिज वाइफ, ही देन ब्रॉट अ पिस्टल, देन शॉट हिमसेल्फ, किस डेट को क्या, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये हैं एविडेंशियरी फैक्ट्स. ठीक है. आपको मेन चीज जो प्लीड करनी है वो ये है कि ए ने सुसाइड की. ठीक. एंड हेंस ऑन दैट मैटर द पॉलिसी इज वॉइड. आपको ये नहीं प्लीड करने की जरूरत है कि उसने कैसे सुसाइड की. कैसे का मैटर आप एविडेंस में बताइए. क्या किया ये मेंशन करना है, कैसे किया ये एविडेंस का मैटर है. ठीक है. ये इनफैक्ट एक दूसरा तरीका हो सकता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन मटेरियल फैक्ट्स एंड एविडेंशियरी फैक्ट्स. ठीक है. फैक्टा प्रोबेंडम और फैक्टा प्रोबेंशिया में डिफरेंस करने का एक दूसरा तरीका हो सकता है कि क्या हुआ के मैटर्स आपको मेंशन करने हैं, कैसे हुआ एविडेंस का पॉइंट है. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो प्लीडिंग है वो एक कंसाइज फॉर्म में होनी चाहिए. अब कंसाइज फॉर्म का मतलब बस इतना सा है कि ऑल द मटेरियल फैक्ट्स मस्ट बी स्टेटेड इन अ समरी फॉर्म एज ब्रीफली एज पॉसिबल एज द नेचर ऑफ द केस रिक्वायर. ठीक है. सिर्फ आप मटेरियल एलिगेशंस को आप लिखिए और जितना ब्रीफली या कंसाइजली आप मेंशन कर सकते हैं उसे करिए. ठीक है. अगर आप कोई चीज़ 2 लाइन में बता सकते हैं तो उसके लिए आप पूरा एक पैराग्राफ मत लिखिए. ठीक है. उसको जितना कंसाइजली, जितना ब्रीफली बता सकते हैं उतना ब्रीफली बताइए. लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो मटेरियल फैक्ट जो आप बता रहे हैं वो कंप्लीट होना चाहिए. ठीक है. ये नहीं कि ब्रीफ के चक्कर में आपने मटेरियल फैक्ट ही ढंग से नहीं बता पाया, वेगली बताया. आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इट शुड बी कंप्लीट. ठीक है. इट शुडंट बी वेग, इट शुड बी कंप्लीट. अब देखिए, अब हम रूल 4 से शुरू करते हैं. फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग देख लीजिएगा. दैट फॉर्म्स इन अपेंडिक्स ए आर गिवन वेयर एवर दे आर एप्लीकेबल, then that shall be used for all the pleadings. And as far as forms of pleading in commercial courts are concerned, under rule 3A, तो अगर हाई कोर्ट ने अपने रूल्स या प्रैक्टिस डायरेक्शंस में कोई फॉर्म दिया हुआ है तो उसी फॉर्म के हिसाब से आप अपनी प्लीडिंग ड्राफ्ट करेंगे. खैर, रूल 4 पे आ जाते हैं. अब ये यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बेयर एक्ट की हैं. अब हम नेक्स्ट जो रुकेंगे वो उधर ही रुकेंगे, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग पे,
कि देखिए जो ये है रूल 4 ये कहता है particulars to be given when necessary in all the cases in which the party pleading relies on any misrepresentation, fraud या breach of trust या willful default or undue influence, and in all the other cases in which particulars may be necessary beyond such as are exemplified in the forms aforesaid, the particulars with the date and items if necessary shall be given in the pleading. जब भी आप fraud, breach of trust, willful default या undue influence claim कर रहे हैं तो उसको क्लेम करने के साथ साथ आपको पर्टिकुलर्स भी देने होंगे, ठीक है। अब ये यहां से थोड़ा उसका एक्सेप्शन शुरू हो गया है कि कहां कहां पे आपको पर्टिकुलर्स प्लीडिंग में मेंशन करने की जरूरत है और कहां कहां नहीं, ठीक है। वो तो जनरल रूल है कि यू हैव टू जस्ट प्लीड मटेरियल फैक्ट्स नॉट पर्टिकुलर्स, लेकिन जब फ्रॉड की बात है, मिसरिप्रेजेंटेशन की बात है, इनफ्लुएंस की बात है या विलफुल डिफॉल्ट की बात है या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात है एसेट्रा, जो भी रूल 4 में दिया है, तो वहां पे यू हैव टू प्लीड इट विद पर्टिकुलर्स विद द डेट्स एंड आइटम्स इफ नेसेसरी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। देन वी कम टू रूल 6, दैट इज कंडीशन प्रेसिडेंट। Any condition precedent, the performance or occurrence which is intended to be contested shall be distinctly specified in his pleading by the plaintiff or defendant, as the case may be, and subject thereto an avowment of performance or occurrence of all the condition precedent necessary for the case of plaintiff or defendant shall be implied in his pleading. Basically इस rule का effect ये है कि the performance of condition precedent need not be pleaded इफ यू हैव परफॉर्म्ड इट, क्योंकि वो प्लीडिंग्स में इंप्लाइड होगा। लेकिन अगर आपने कंडीशन प्रेसिडेंट नहीं परफॉर्म की है, इफ इट इज अ केस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कंडीशन प्रेसिडेंट, देन यू हैव टू स्पेसिफिकली एंड एक्सप्रेसली प्लीड इट, क्योंकि कोर्ट जो है वो मान के चलेगा कि आपने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या किसी भी ऑब्लिगेशन के एनेक्स होने से पहले उसकी जो कंडीशन प्रेसिडेंट थी उसे कंप्लाई किया है। अगर आपने कंडीशन प्रेसिडेंट से नहीं कंप्लाई किया है तो स्पेसिफिकली एंड एक्सप्रेसली प्लीड करिए, ठीक है। Then we come to the next rule, that is rule 7. It says no pleading shall, except by way of amendment, raise any new ground of claim or contain any allegation of fact inconsistent with the previous pleading or party pleading the same. तो आपने अगर कुछ प्लीड किया है तो अब आप उससे इनकंसिस्टेंट प्लीड नहीं कर सकते, ठीक है। और साथ में एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको अमेंडमेंट नहीं अलाउ किया गया, देन यू कैन नॉट give evidence on the matters that you have not pleaded. अब मान लीजिए आपने इशू एक डिवोर्स केस में उठाया है क्रूएलिटी का, ठीक है, और वहां पे आपने डिजर्शन कहीं नहीं प्लीड किया है। अब आप मान लीजिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल डिजर्शन का इशू उठाने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट देयर बीइंग एन अमेंडमेंट इन योर प्लीडिंग, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में कोर्ट विल नॉट अलाउ यू टू गिव एविडेंस ऑन डिजर्शन, ठीक है, जनरली बता रहा हूं। वैसे ही अगर आपका सूट है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, उसको क्लेम कर रहे हैं आप, और उसके बाद क्या कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट में आप ये साथ में क्लेम करने लगे विदाउट देयर बीइंग अ प्लीडिंग टू दैट इफेक्ट कि मुझे डैमेजेस चाहिए। प्लीडिंग्स में आपने क्लेम नहीं किए डैमेजेस, ठीक है, यू हैव नॉट क्लेम डैमेजेस इन योर प्लीडिंग, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं मुझे डैमेजेस चाहिए। ऐसी सिचुएशन में यू वोंट बी एबल टू क्लेम इट। सो ध्यान रखिएगा कि आप कोई नया ग्राउंड क्लेम या कोई नया एलिगेशन ऑफ फैक्ट नहीं उठा सकते इफ इट इज इनकंसिस्टेंट विद योर प्रीवियस प्लीडिंग्स दैट यू हैव गिवन, आइदर यू आर द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, एक्सेप्ट बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट उसका एक एक्सेप्शन है, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग इज एन एक्सेप्शन। देन वी कम टू रूल 8, दैट इज डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज एलेज्ड इन एनी प्लीडिंग, अ बेयर डिनायल ऑफ द सेम बाय द ऑपोजिट पार्टी shall be construed only as a denial in fact of the express contract alleged or of the matters of fact which the same may be implied, and not as the denial or legality or sufficiency in the law of contract. मतलब जब आप डिनाई करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट तो ये कंस्ट्रू किया जाएगा अ डिनायल इन फैक्ट कि पार्टीज के बीच में कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था। वहां पे कोर्ट ये नहीं इंप्लाई करेगा आपकी प्लीडिंग से कि आप ये कहना चाह रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट तो हमने मेन किया था लेकिन उसमें कंसिडरेशन कोई इन्वॉल्व नहीं थी, सो हेंस इट वाज वॉइड, या कॉन्ट्रैक्ट को हमने अग्रीमेंट को हमने स्टैम्प पेपर पे रजिस्टर नहीं करवाया था तो हेंस क्या कहते हैं वो इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। और टेक्निकलिटीज में कोर्ट नहीं जाएगा। आपने डिनाई किया एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो कोर्ट ये मान के चलेगा कि द कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली नेवर एग्जिस्टेड इन द फर्स्ट प्लेस।
तो अगर आप कोई टेक्निकलिटी वाला ग्राउंड लेना चाहते हैं तो प्लीडिंग्स में मेंशन करिए। तो बेयर डिनायल अगर आप करेंगे कॉन्ट्रैक्ट का तो वो माना जाएगा डिनायल इन फैक्ट ऑफ द एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट ये मान के चलेगा पार्टीज ने कभी कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं, ठीक है, ये मान के चलेगा। वहां पे वो टेक्निकलिटीज को नहीं इंप्लाइड करेगा आपकी बात में। अगर टेक्निकलिटीज हैं तो आप स्पेसिफिकली प्लीडिंग्स में बताइए। देन effect of document to be stated. When the contents of any document are material, it shall be sufficient in any pleading to state the effect thereof as briefly as possible without setting out the whole or any part of the document unless the precise words of the document are material. आप उनका प्रभाव बता दीजिए, इफेक्ट बता दीजिए, दैट इज एसेंशियल। आप उनका पूरा उनको डॉक्यूमेंट के पूरे टर्म्स वहाँ पे ना एग्जैक्टली प्रोड्यूस कर दीजिए, सिर्फ इफेक्ट बता दीजिए कि उस डॉक्यूमेंट से क्या इफेक्ट होगा, हाउ डज इट हेल्प यू, ठीक है, उसका सिर्फ इफेक्ट बता दीजिए। एक ही कंडीशन है जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट के एग्जैक्ट वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जब वो वर्ड्स इटसेल्फ आर मटेरियल। वैसे ही जो मैलिस और नॉलेज को लेके नेक्स्ट रूल है, रूल 10, वो कहता है व्हेनेवर इट इज मटेरियल टू एलिज मैलिस, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, नॉलेज और अदर कंडीशन ऑफ माइंड, तो यू जस्ट मेंशन इट एज अ फैक्ट विदाउट सेटिंग आउट द सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम इट शुड बी इन्फर्ड। आप उसको सीधे फैक्ट की तरह मेंशन कर दीजिए। Then we come to rule 11. It says whenever it is material to allege notice to any person of any fact, matter or thing, it will be sufficient to allege such notice as a fact unless form and precise terms of such notice or the circumstances from which the notice has to be informed are material. ठीक है, तो generally you have to just allege notice as a fact कि नोटिस दे दी गई है पार्टी को, इतना आप मेंशन कर दीजिए। आपको वो सर्कमस्टेंसेस से अगर नोटिस इन्फर करवानी है तब सर्कमस्टेंसेस मेंशन करिए। जहाँ पे एक्सप्रेस नोटिस नहीं दी गई है या जहाँ पे प्रिसाइज टर्म्स ऑफ नोटिस आर मटेरियल, तभी उन्हीं सर्कमस्टेंसेस को मेंशन कर दीजिए। अब ऑर्डिनरली ऐसी सिचुएशन नहीं आती है। ऑर्डिनरली अगर आप किसी लॉयर के पास जाएंगे, लॉयर प्रॉपरली नोटिस देता है, नोटिस देने के बाद वो एक क्या कहते हैं उसके पास रिकॉर्ड रहता है और उस बेसिस पे वो ऑलरेडी प्लीडिंग्स में नोटिस को एक्सप्रेसली मेंशन कर देता है wherever it is material. Then we come to rule 12, that is implied contract or relation. Now it says that whenever any contract or any relation between person is to be implied from a series of letters or conversations or otherwise from a number of circumstances, it shall be sufficient to allege such contract or relation as a fact and refer generally to such letter, conversation or circumstances without setting them out in detail. मतलब आपको letter, conversation या circumstances छापने की जरूरत नहीं है exactly pleading में, आप generally mention कर दीजिए। If in such case the person so pleading desires to rely in alternative upon more contracts or relation than one as to be implied from such circumstances, he may state the same in alternative. ठीक है, अगर more contracts हैं तो आप उसे alternative में भी mention कर सकते हैं। Then comes the presumption of law. It says neither party need in any pleading allege any matter of fact which the law presumes in his favor or as to the burden of proof lies upon the other side unless the same has been first specifically denied. For example, consideration of a bill of exchange where the plaintiff sues only for the bill and not for the consideration as a substantive ground of a claim. तो basically आपको presumptions of law expressly plead करने की कोई भी जरूरत नहीं है। It is again an elaboration of the doctrine that plead facts not law. आप facts plead करिए, law को के presumptions आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं रूल 14 पे। अच्छा, रूल 14, 14A, 15, 16, 17 और 18 ये मेंस और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो है पूरा चैप्टर ऑफ प्लीडिंग ही इंपॉर्टेंट, लेकिन ये मेंस और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको काफ़ी डिटेल में करना होगा। मैं आज तो अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग नहीं हो पाएगा, पर वेरिफिकेशन तक हम लोग विल ट्राई टू कंप्लीट। तो रूल 14 कहते हैं प्लीडिंग टू बी साइंड, एवरी प्लीडिंग शैल बी साइंड बाय द पार्टी एंड द प्लीडर इफ एनी, provided that where party pleading is by reason of absence or other good cause unable to sign the pleading, it may be signed by any person duly authorized by him to sign the same or to sue or defend on his behalf. तो pleading जो भी हो, it shall be signed by party or his pleader and his pleader, sorry, party और pleader दोनों को sign करना होगा, और नहीं है यहाँ पर, party and pleader both have to sign the pleading. और अगर पार्टी एब्सेंट है then it may the pleading may be signed by any person who is duly authorized. तो ये जो टर्म्स है वो मार्क कर लीजिए। पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि पार्टी एंड प्लीडर हैज टू साइन द प्लीडिंग, और अगर एब्सेंस है पार्टी की then it can be signed by the person duly authorized. ठीक है, अब इस पे सवाल क्या आएगा? इस पे सवाल बस आपको इतना आएगा कि who has to
क्या कहते हैं, साइन द प्लीडिंग्स, कौन किसको साइन करने की जरूरत पड़ती है। इस पे आपको इस तरीके से सवाल आएगा, तो यू जस्ट हैव टू बी बेसिकली अवेयर कि पार्टी और प्लीडर दोनों को साइन करना है, ठीक है। अज्यूमिंग कि प्लीडर के थ्रू केस फाइल किया जा रहा है, देन ही हैज टू साइन इट एज वेल। और अगर पार्टी एब्सेंट है तो एनी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड इन हिज बिहाफ कैन साइन द प्लीडिंग, ठीक है। अब जरा रूल 14A पे आ जाते हैं। ये रूल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बेयर एक्ट लेवल पे इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल लेवल पे नहीं। रूल 14, 14A और 15 कंसेप्चुअल लेवल पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बेयर एक्ट लेवल पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दिस प्रोविजंस, ठीक है। तो रूल 14A कहता है कि एवरी प्लीडिंग when filed by a party shall be accompanied by the statement in the prescribed form signed and provided in rule 14 regarding the address of the party, ठीक है। तो जो भी प्लीडिंग होगी जब आप फाइल कर रहे हैं तो उसके बाद प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में आप एड्रेस ऑफ द पार्टी भी प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सच एड्रेस में फ्रॉम टाइम टू टाइम बी चेंज्ड बाय लॉजिंग इन कोर्ट अ फॉर्म ड्यूली फिल्ड अप and stating the new address of the party and accompanied by a verified petition, मतलब वेरीफाई करके आप जो हैं एक नया एड्रेस जो या फिर आपने अर्लियर जो एड्रेस फाइल किया था उसको चेंज भी करवा सकते हैं, ठीक है। दैट इज अप टू यू। अब जो भी एड्रेस आप फर्निश करते हैं कोर्ट को, ठीक है, उसको कहा जाता है रजिस्टर्ड एड्रेस, ये रूल 3 बताता है। और जब तक वो चेंज ना किया जाए, it would be deemed to be the address of the party for the purpose of serving all the process in the suit or in any appeal from any decree or order therein made and for the purpose of execution, and shall hold good subject as aforesaid for the period of 2 years after the final determination of cause of matter। तो ये लाइन मार्क कर लीजिए, 2 साल आफ्टर फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज और मैटर, क्योंकि यही पूछा जाता है। इसमें बस इतनी बात का अवेयरनेस रखिएगा कि for how long this registered address is held good by the court. Period. Answer is 2 years after the determination of cause or matter. और ये अभी रूल 5 आपको बताएगा why this is important. रूल 4 पढ़ लेते हैं। Service of any process may be effected upon a party at his registered address in all the respects as though such party resided thereat, ठीक है। रूल 5 कहता है where the registered address of a party is discovered by the court to be incomplete, false or fictitious। डिस्कवर्ड शब्द को मार्क करिए और इनकम्प्लीट, फॉल्स और फिक्टिशियस को मार्क करिए। कोर्ट में ऑन हिज ओन मोशन मार्क द वर्ड ओन मोशन, और ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी मार्क द वर्ड एप्लीकेशन। ऑर्डर that in case where the registered address is furnished by the plaintiff, stay of the suit, mark the word stay, and in the case where the registered address were furnished by the defendant, his defense to be struck out and he be placed in the same position as if he has not put up any defense। So you can understand कि कोर्ट से अगर registered address को लेके झूठ बोला तो रूल 5 आपको consequence बता देता है। And what is the consequence for the plaintiff? Stay of the suit। इस बात पे ध्यान रखिएगा कि प्लेंटिव का सूट डिसमिस नहीं होता है, स्टे कर दिया जाता है जब तक कि वो अपना प्रॉपर एड्रेस ना दे, एंड देन ही हैज टू पे द कॉस्ट एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें भी पे करनी पड़ती हैं। और अगर आप डिफेंस में हो तो आपके लिए तो और भी ज़्यादा सीरियस है, आपका डिफेंस ही स्ट्रक आउट हो जाएगा और आपको ऐसी सिचुएशन में ला दिया जाएगा जैसे कि आपने डिफेंस ना किया हो, ठीक है। और ये कब हो सकता है? बाय आइदर द कोर्ट सू मोटो पता कर ले कि आपका जो एड्रेस था इट इज इनकम्प्लीट है, इट इज इनकम्प्लीट, फॉल्स और फिक्टिशियस, ठीक है। झूठा एड्रेस है, इनकम्प्लीट है या फिक्टिशियस है, ये कोर्ट खुद भी पता कर सकता है, या मान लीजिए ऑपोजिट पार्टी बाय एन एप्लीकेशन कोर्ट को बता दे कि ये जिन्होंने रजिस्टर्ड एड्रेस दिया है ही इज लाइंग टू यू, ठीक है, ही इज लाइंग टू यू। और ऐसे में कोर्ट कैन रिजॉर्ट टू सब रूल 5 ऑफ रूल 14A ऑफ ऑर्डर 6, और ऐसे में पेनल्टी बड़ी सीवियर है, कोर्ट चाहे तो ऐसा कर सकता है, लेकिन मैंडेट भी नहीं है। व्हेन यू सी द फर्दर रूल्स तो और भी इस पे एलैबोरेशन मिलते हैं। क्या एलैबोरेशन मिलते हैं? रूल 6 देखिए, वेयर अ सूट इज स्टेड और डिफेंस इज स्ट्रक आउट अंडर सब रूल 5, द प्लेंटिव or the defendant may, after furnishing the true address, apply the court for an order to set aside the order of stay, or as the case may be, order striking out the defense. The court, if satisfied that the party was prevented by any sufficient cause, mark the word sufficient cause, from filing the true address at the proper time, then it shall set aside the order of stay
or order striking out the defense on such term as to cost or otherwise as it thinks fit, and shall appoint a day for proceeding with the suit or defense as the case may be. Then finally, sub-rule 8 says, nothing in this rule shall prevent the court from directing the service of a process at any other address if for any reasons it thinks fit to do so. कोर्ट चाहे तो किसी और एड्रेस पे भी सर्विस कर सकता है, और कोर्ट चाहे तो it can set aside the penalty which he has so imposed under sub rule 5 of rule 14A. अब देखिए, इसमें सफिशिएंट कॉज कोर्ट को दिखाना पड़ता है कि किसी गुड कॉज के कारण आप सही एड्रेस नहीं दे पाए थे. कोर्ट को लगता है कि भाई आपके पास सफिशिएंट कॉज था, तो वो क्या करेगा, इट विल सेट असाइड द ऑर्डर दैट इट हैज गिवन अंडर सब रूल 5 ऑफ रूल 14A. अब इसमें ध्यान रखिएगा कि कॉस्ट देने पड़ते हैं जनरली, ठीक है, जनरली कॉस्ट देने पड़ते हैं. सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में कभी कभी कोर्ट जो है वो कॉस्ट इंपोज नहीं करता, पर ऑर्डिनरली इट इंपोजेस द कॉस्ट. और फिर एक बार जब कोर्ट ने वो ऑर्डर सेट असाइड कर दिया तो क्या होगा, देन इट विल प्रोसीड विद द सूट. ठीक है, तो वो सूट से प्रोसीड करेगा. तो इसमें कोई एज सच नुआंस नहीं है, देयर हैज टू बी जस्ट अवेयरनेस अबाउट इट. आपको हमेशा ये क्वेश्चन आएगा कि ये जो रूल है, ये जो पावर है कोर्ट की, ये कौन से ऑर्डर के रूल में रिसाइड करती है. ठीक है, देन यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू मेंशन रूल 14A. ठीक, इसको लेके अवेयर रहिएगा. रूल 14A सब रूल 5. ठीक है, फिर क्या सवाल आ सकता है कि जो फर्निश्ड एड्रेस है, रजिस्टर्ड एड्रेस है कोर्ट में, वो कितने साल तक इज कंसिडर्ड गुड फॉर द पर्पस ऑफ सर्विस ऑफ प्रोसेसेस. 2 साल तक. ठीक है, 2 साल कहाँ से काउंट होंगे, आफ्टर द फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉज और मैटर. ठीक है, फिर ये सवाल आ सकता है कि रजिस्टर्ड एड्रेस कौन डिस्कवर कर सकता है टू बी फॉल्स फिक्टिशियस. तो आंसर है कोर्ट. लेकिन क्या वो सुमोटो कर सकता है या ऑन एप्लीकेशन. इस तरीके से भी सवाल आ सकता है कि वो सुमोटो कर सकता है या ऑन एप्लीकेशन. देन द आंसर इज बोथ. सुमोटो भी कर सकता है, एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी के बेसिस पे भी कर सकता है. प्रैक्टिस में जनरली एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी के ही बेसिस पे होता है. बहुत रेयर इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे कोर्ट को सुमोटो पता चल जाए दैट द एड्रेस फर्निश्ड इज इनकम्प्लीट, फॉल्स और फिक्टिशियस. ठीक है, बहुत रेयरली ऐसा होता है, नॉट ऑर्डिनरली. अब आ जाते हैं रूल 15 पे. ये बहुत पूछा जाता है प्रीलिम्स में कि वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स किधर है. अब ये रूल कहता है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ for the time being in force, every pleading shall be verified at the foot by the party or by one of the parties pleading or by some other person proved to the satisfaction of the court to be acquainted with the facts of the case. तो pleadings को verify कौन करेगा, party. ठीक है, the party itself will verify the pleadings. ठीक है, चाहे वो plaint हो या written statement हो. अब सब रूल 2 इसका कहता है कि द पर्सन वेरीफाइंग शैल स्पेसिफाई बाय रेफरेंस टू द नंबर्ड पैराग्राफ्स ऑफ द प्लीडिंग व्हाट ही वेरीफाइज ऑफ हिज ओन नॉलेज एंड व्हाट ही वेरीफाइज अपॉन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड बिलीव टू बी ट्रू. तो रूल 15 का सब रूल 1 आपको ये बताता है कि पार्टी ही एट द फुट ऑफ द प्लीडिंग शैल वेरीफाई द प्लीडिंग्स. ठीक है, रूल 1 आपको ये बताता है. और अगर वो पार्टी अवेलेबल नहीं है तो कोई दूसरा पर्सन भी कर सकता है, वो इज प्रूव टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस. सब रूल 2 बताता है कि जो पर्सन वेरीफाई कर रहा है वो ये बताएगा in reference to the numbered paragraphs of the pleading that what he verifies of his own knowledge and what he verifies upon the information believed and believed to be true. अब प्लेंट में कई पैराग्राफ होते हैं, वैसे डिफेंडेंट में भी रिटन स्टेटमेंट में भी कई पैराग्राफ होते हैं. प्लेंट का एग्जांपल ले लेते हैं. अब प्लेंट में मान लीजिए 10 पैरा हैं उसमें जिसमें एलिगेशंस ऑफ फैक्ट कंटेन्ड है. अब वो ये कह सकता है कि फ्रॉम पैरा 1 to 6 आई वेरीफाई देम ऑन माई ओन नॉलेज, एंड जो बाकी के जो 4 बचे हैं उसको ये बोल सकता है कि दे आई वेरीफाई अपॉन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड बिलीव टू बी ट्रू. अब ये सिचुएशन जो वेरिफिकेशन की है, जिसमें आप बताते हैं कि व्हाट डू यू वेरीफाई ऑन योर ओन नॉलेज एंड व्हाट डू यू वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड बिलीव टू बी ट्रू,
ये डिपेंड करता है फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस पे, पर बेसिकली आपको सच बताना होता है, आपको एक्सप्रेसली कोर्ट को बताना होता है कि क्या आप पर्सनली जानते हैं और क्या आपने इंफॉर्मेशन रिसीव्ड के बेसिस पे वेरिफिकेशन किया है। ठीक है, आपको एक्सप्रेसली कोर्ट को बताना है कि व्हाट डू यू वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन पर्सनल नॉलेज एंड व्हाट डू यू वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड बिलीव टू बी ट्रू। ये आपको एक्सप्रेसली बताना होता है। कभी कभी हो सकता है कि आपको कोई भी ऐसा फैक्ट ना हो विच यू हैव रिसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आपकी पूरी की पूरी जो प्लेंट है उसका जो वेरिफिकेशन होगा दैट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ योर ओन नॉलेज। ठीक है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपने जो पूरी की पूरी प्लेन ड्राफ्ट की है, जो भी आपके एलिगेशंस ऑफ फैक्ट हैं, दे हैव बीन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड बिलीव टू बी ट्रू, तो यू विल वेरीफाई इट अकॉर्डिंगली। आप बताएंगे कि वो आपकी पर्सनल नॉलेज पे बेस्ड नहीं है, इट इज बेस्ड अपॉन एन इंफॉर्मेशन विच इज बिलीव टू बी ट्रू। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे मिक्स भी हो सकता है, सम फैक्ट्स यू वेरीफाई ऑन योर ओन नॉलेज एंड सम फैक्ट्स यू वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड बिलीव टू बी ट्रू। ठीक है, तो फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। थर्ड इज वेरिफिकेशन शैल बी साइंड बाय द पार्टी मेकिंग इट एंड शैल स्टेट द डेट एंड द प्लेस ऑन विच इट वाज साइंड। वेरी इंपॉर्टेंट, डेट प्लेस मेंशन करनी बहुत जरूरी है, एंड इट विल बी साइंड बाय द पार्टी मेकिंग इट। Fourthly, person verifying the pleading shall also furnish an affidavit in support of his pleading. Very 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 important. Pleading के साथ साथ एक affidavit भी furnish करना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि what is the object of this provision? See, the object of this provision is to fix upon the party verifying or on whose behalf the verification is made the responsibility for the statement it contains, and to prevent as far as possible disputes as to whether the suit was instituted or defended with the knowledge or authority of the party who has signed the verification or on whose behalf it was signed. तो इसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है कि जो पार्टी वेरीफाई कर रही है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा देना फॉर द स्टेटमेंट्स दैट द प्लीडिंग कंटेन्स। ठीक है, आपने वेरीफाई किया, भाई आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और साथ ही साथ इसका दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, टू प्रिवेंट एज फार एज पॉसिबल द डिस्प्यूट्स विच रिलेट टू द अथॉरिटी ऑफ द पार्टी हु हैज साइंड एंड वेरीफाइड द प्लीडिंग। फिर कम से कम इस बात का डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए कि पार्टी का कि अरे मैंने तो साइन ही नहीं किया था, है ना, तो कैसे आपने सूट मेरे बिहाफ पे एडमिट कर लिया। उन सारे सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए ये चीज़ें हैं। अब ये सवाल उठता है कि अगर मान लीजिए देयर इज अ डिफेक्ट इन द मैटर ऑफ साइनिंग एंड वेरीफाइंग द प्लीडिंग्स, तो क्या इसके बेसिस पे सूट डिसमिस किया जा सकता है या इट्स अ मियर इरेगुलरिटी विच कैन बी करेक्टेड एट अ लेटर स्टेज ऑफ द सूट विद द लीव ऑफ द कोर्ट? इसका आंसर ये है कि डिफेक्ट इन द मैनर ऑफ वेरिफिकेशन ये एक इरेगुलरिटी है जो लेटर स्टेज पे करेक्ट की जा सकती है विद द लीव ऑफ द कोर्ट, और सूट सिर्फ इसी के बेसिस पे डिसमिस नहीं हो सकता कि देयर इज अ डिफेक्ट और इरेगुलरिटी इन वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन में डिफेक्ट या इरेगुलरिटी की वजह से सूट डिसमिस नहीं होता। आप कोर्ट की परमिशन से, कोर्ट की लीव से यू कैन करेक्ट एनी एरर और इरेगुलरिटी विच द वेरिफिकेशन कंटेन्स। सिमिलरली वेरिफिकेशन के साथ जो एफिडेविट आता है, अगर उसमें कोई एरर है या डिफेक्ट है तो कोर्ट की परमिशन से वो करेक्ट किया जा सकता है। तो बेसिकली आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपनी बेयर एक्ट में लिख दीजिए, इट्स अगर इसमें कोई डिफेक्ट या इरेगुलरिटी होती है देन इट इज़ अ मियर इरेगुलरिटी, इसके बेसिस पे सूट नहीं डिसमिस किया जाता। ठीक है, so in a case of defect in the manner of signing and verification of the pleadings, a suit cannot be dismissed nor the order be passed against the party on the ground of defect or irregularity in signing or verification of a plaint or written statement. The mere irregularity or defect in signing or verification of the pleadings can be corrected at any stage with the leave of the court. Now there is a case in point in this aspect, that is Bhikaji Keshav Joshi वर्सेस ब्रिजलाल नंदलाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर वेरिफिकेशन डिफेक्टिव है, क्योंकि इसमें वेरिफिकेशन को लेके एक मैटर उठा था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर वेरिफिकेशन डिफेक्टिव है तो इसी ग्राउंड पे पिटीशन या सूट नहीं डिसमिस किया जा सकता, क्योंकि अगर वो लैक्यूना है तो आप लैक्यूना को फिल कर दीजिए, भाई पिटीशन पे सिग्नेचर नहीं है या उसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं तो आप उसे करेक्ट करवा लीजिए, इसके बेसिस पे आप सूट नहीं डिसमिस कर सकते।
या आप एप्लीकेशन भी इस ग्राउंड पे डिसमिस नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट वुड बी अ रॉन्ग एक्सरसाइज ऑफ अ डिस्क्रिशनरी पावर टू डिसमिस एन एप्लीकेशन ऑन द सोल ग्राउंड ऑफ एब्सेंस ऑफ डेट ऑफ वेरिफिकेशन। अब मान लीजिए डेट एब्सेंट है, या प्लेस का मेंशन एब्सेंट है, या सिग्नेचर में ओमिशंस हैं, तो ये क्योरेबल इरेगुलरिटीज हैं, ठीक है। यू कैन मेंशन दैट, यू डोंट नीड टू रेफर अ केस लॉ इन दिस पॉइंट। एक प्रैक्टिकल प्रोसीजर का बात है कि ये इतना सीवियर डिफेक्ट नहीं माना जाता है जिसको करेक्ट ही ना किया जा सकते, है ना। इट इज़ नॉट सच अ सीवियर डिफेक्ट कि इसमें आप एरर ही करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इट हैज़ टू बी समथिंग सो सीवियर तो लेजिस्लेचर खुद ही बता देता आपको, कि लेजिस्लेचर खुद ही यहाँ पे वेरिफिकेशन के पॉइंट में लिख देता कि प्लीडिंग्स डिसमिस हो सकती हैं या रिजेक्ट हो सकती हैं अगर आपने वेरिफिकेशन ढंग से नहीं किया। पर ऐसा तो कहीं भी लेजिस्लेचर ने मेंशन किया। ये प्राइमरली रीजनिंग थी सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। तो वेरिफिकेशन को लेके बस आपको इतने ही चीज़ों को ध्यान में रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान में रखना है कि अगर वेरीफाई करने में डिफेक्ट है या कुछ मिस्टेक्स हैं तो कोर्ट की परमिशन से आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ क्योरेबल इरेगुलरिटी, इट इज़ नॉट सच एन इरेगुलरिटी on the basis of which a party which has committed a mistake in verification would be penalized. I'll reiterate again, a defect in the matter of signing and verification of pleadings is merely an irregularity, can be corrected at a later stage of the suit with the leave of the court, and the suit cannot be dismissed, nor an order be passed against a party on the ground of defect or irregularity in signing or verification of a plaint or written statement, ठीक है। अब एक दूसरा तरीका और है जिससे आप गैदर कर सकते हैं द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, कि वाई द लेजिस्लेचर इंटेंडेड कि जो वेरिफिकेशन है वो क्योरेबल इरेगुलरिटी है। ये आप कैसे गैदर कर सकते हैं? कुछ नहीं, रूल 14A और रूल 15 को आप कंपेयर कर लीजिए आपस में। 14A में जब आप अपना एड्रेस सही फर्निश ना करें तो देखिए उसकी पेनल्टी कितनी ज़्यादा है, सब रूल 5 में है ना। 14A में वो जो सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था वो 1976 में हुआ था। एज ऑफ लेटेस्ट जो वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स का जो सेक्शन है, इट हैज़ बीन अमेंडेड बाय द एक्ट 46 ऑफ 1999 विच हैज़ बीन इन फोर्स फ्रॉम 1 जुलाई 2002, जिसने वो एफिडेविट वाला पॉइंट ऐड किया था कि द पर्सन वेरीफाइंग द प्लीडिंग शैल ऑल्सो फर्निश एन एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ हिज प्लीडिंग। लेकिन लेजिस्लेचर ने कहीं पे भी वो पॉइंट नहीं डाला कि अगर आपने क्या कहते हैं वेरिफिकेशन में कोई एरर कर दिया या कुछ चीज़ नहीं मेंशन की या साइनिंग ओमिशन है तो उस बेसिस पे जो है आप अगर डिफेंडेंट हैं तो आपका डिफेंस विल बी स्ट्रक ऑफ, या अगर आप प्लेंटिफ हैं तो आपका सूट स्टे हो जाएगा। ऐसी कोई चीज़ मेंशन नहीं की। इट मीन्स कि ये क्योरेबल इरेगुलरिटी एंड इट कैन बी करेक्टेड विद द लीव ऑफ द कोर्ट, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ये फेयरली सिंपल प्रोविजन है। इसमें सिर्फ पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा, रूल 15 का ध्यान रखिएगा। अब कभी कभी जो वेरिफिकेशन होता है वो ऐसे लिखा जाता है कि आफ्टर यू लेट अस सपोज यू हैव सबमिटेड अ प्लेंट, तो प्लेंट वेंट लिख दिए, तो लास्ट में आप वेरिफिकेशन ऐसे लिख रहे हैं, आई द अबव नेम्ड प्लेंटिफ डू हेयर बाय वेरीफाई दैट द कंटेंट्स ऑफ पैरा नंबर 1, 2, 3 and 4 आर ट्रू टू माई नॉलेज एंड द कंटेंट्स ऑफ द रिमेनिंग पैरास आर अकॉर्डिंग टू द लीगल एडवाइस obtained from my advocate which I believe to be true। ऐसे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो वेरिफिकेशन का मेन एसेंस मैंने आपको बता दिया। सेक्शन नंबर का ध्यान रखिएगा, सॉरी सेक्शन नंबर कह रहा हूँ, रूल 15 का ध्यान रखिएगा। ऑर्डर 6 रूल 15 पूछा जाता है कि ये कहाँ पर है और वेरिफिकेशन किसको करने की ज़रूरत है, तो पार्टी, और अगर पार्टी नहीं है तो एनी अदर पर्सन प्रूव टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट टू बी एक्वेंटेड विद फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। देन वी कम टू रूल 15 है, इसकी एक बेयर रीडिंग करनी है बस, और कुछ नहीं। इट सेज कि कमर्शियल डिस्प्यूट में कैसे वेरिफिकेशन होगा। इट सेज नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन रूल 15, मतलब ये नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है, इट ओवरराइड्स रूल 15। इट सेज every pleading in commercial dispute shall be verified by an affidavit in the manner and form prescribed in the appendix to this schedule. An affidavit under sub-rule 1 shall be signed by the party or one of the parties to the proceeding or by any other person on behalf of such party or parties who is proved to the satisfaction of the court to be acquainted with facts of the case and who is duly authorized by such party or parties. ऑल राइट, इसमें आपको ड्यूली ऑथराइजेशन वाला पॉइंट आ जाता है और बाकी सेम है कि द पार्टी शुड बी acquainted with the facts and circumstances of the case, etc. So in perimeter it's almost similar to rule 15, काफ़ी कुछ similar है. Then we go ahead and it says
कि वेयर प्लीडिंग इज अमेंडेड, अमेंडमेंट मस्ट बी वेरीफाइड इन फॉर्म एंड मैनर रेफर्ड टू इन सब रूल 1 अनलेस द कोर्ट ऑर्डर्स अदरवाइज। यहां पे डिफर करता है, यहां पे ये कह रहा है कि अगर प्लीडिंग अमेंड होती है तो अमेंडमेंट का भी वेरिफिकेशन होगा उस फॉर्म ऑफ मैनर में जैसा कि सब रूल 1 में दिया गया है, जब तक कोर्ट अदरवाइज ऑर्डर ना करे। इट इज सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। Then we come to sub rule 4 of 15A. It says where a pleading is not verified in the manner provided under sub rule 1, the party shall not be permitted to rely on such pleadings as evidence or any other matter set out therein. देखिए ये है पेनल क्लॉज, ठीक है, ये रूल 15 में नहीं है पर कमर्शियल डिस्प्यूट में रूल 15A में है, ठीक है। तो यहां पे आप इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर देख सकते हैं। यहां पे लेजिस्लेचर ने बड़ी क्लियरली बता दिया कि अगर प्लीडिंग वेरीफाई नहीं हुई है इन द मैनर दैट इज प्रोवाइडेड इन सब रूल 1 ऑफ रूल 15A ऑफ ऑर्डर 6, then party shall not be permitted to rely on such pleading as evidence or any of the matters set out therein. अब यहाँ पे fatal हो जाएगा, then you cannot rely upon the pleadings at all, ठीक है। Then we come to sub rule 5. It says court may strike out a pleading which is not verified by a statement of truth, namely the affidavit set out in appendix to this schedule. तो कोर्ट के पास इसमें और पावर आ जाती है कि अगर प्लीडिंग वेरीफाई नहीं हुई है और एफिडेविट नहीं लगाया गया है, देन कोर्ट में स्ट्राइक आउट दैट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको सब रूल 4 और 5 ऑफ रूल 15A आपको पेनल क्लॉजेस की तरह मिलते हैं कि अगर प्लीडिंग वेरीफाइड नहीं है सब रूल 4 में, तो पार्टी शैल नॉट बी परमिटेड टू रिलाई ऑन सच प्लीडिंग्स एज एविडेंस और एनी ऑफ द मैटर सेट आउट देयरइन। Then sub rule 5 says that the court may strike out a pleading which is not verified by a statement of truth, namely the affidavit set out in appendix to this schedule. मतलब कि अगर एफिडेविट आपने साथ में नहीं फर्निश किया इन द सपोर्ट ऑफ दैट वेरिफिकेशन एंड प्लीडिंग, तो क्या होगा, वो प्लीडिंग स्ट्रक आउट भी हो सकती हैं। हो सकती हैं शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मे शब्द का यूज किया गया है। कोर्ट के ऊपर मैंडेट नहीं है कि आप हटा दीजिएगा, फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस देख के ही कोर्ट अपना डिस्कशन एक्सरसाइज करेगा और प्रॉपरली वैसे ही करना चाहिए। नॉर्मली कोर्ट को पार्टीज को थोड़ा लीवे देना चाहिए कि अगर गलती से इफ दे हैव बीन अनेबल टू फर्निश एन एफिडेविट, तो एट फर्स्ट इंस्टेंस द कमर्शियल कोर्ट शुड गिव देम परमिशन टू फाइल द एफिडेविट, ठीक है, रादर देन जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्राइकिंग आउट द प्लीडिंग। अगर उसके बाद भी नहीं करता है, देन यू मे एक्सरसाइज योर जुडिशियल डिस्कशन टू स्ट्राइक आउट दोस प्लीडिंग। अब आप देख रहे हैं ना कि कितना डिफरेंस है कमर्शियल डिस्प्यूट में और ऑर्डिनरली या जनरल वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स में। इसी से आपको पता चलता है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द जनरल रूल 15 तो सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन कमर्शियल डिस्प्यूट्स के मैटर में सिचुएशन डिफरेंट है विद रिगार्ड टू द वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स। एक में देयर आर पेनल्टीज अटैच्ड अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं किया इन द मैनर दैट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल 15A, और एक में देयर आर नो पेनल्टीज अटैच्ड, दैट इज ओनली अ क्यूरेबल इरेगुलरिटी, ठीक है। तो दिल्ली को छोड़ के रूल 15A पे आपको ज़्यादा सवाल कहीं नहीं आने वाले, तो आपको जनरली कन्फाइंड रहना है रूल 15 से, नॉट रूल 15A। ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रीलिम्स में पूछ लेंगे कि भाई रूल 15A कमर्शियल डिस्प्यूट से रिलेट करता है या नहीं, ऐसा ही कुछ घुमा फिरा के सवाल पूछेंगे, वो इन डेप्थ नहीं जाएंगे। तो एज फार एज कमर्शियल डिस्प्यूट इज कंसर्न आपको बस ये ध्यान रखना है कि क्या पेनल्टीज अटैच्ड है, बेयर एक्ट के लेवल पे, उससे ज़्यादा नहीं। एंड एज फार एज रूल 15 सिंपलिसिटर इज कंसर्न, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि वो क्यूरेबल इरेगुलरिटी है एज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ बीकाजी वर्सेस ब्रिजलाल, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। टुमारो वी विल टॉक अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लीडिंग्स एंड अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स, ठीक है। वो अपने आप पे थोड़ा बड़ा टॉपिक है, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। वी विल डिस्कस इट टुमारो इन ग्रेट डिटेल, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो।